with transcendental knowledge. He is my Lord, birth after birth. From him, he is my Lord, birth after birth. From him, ecstatic prema emanates. By him, ignorance is destroyed. The Vedic scriptures sings of his character. Our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of the poor, and the Lord of the master of the devotees. O, O Master, be merciful unto me. Give me the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three worlds. We take shelter of your lotus feet. You are the friends of the most fallen. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Gurudev. पांचवा अध्याय 11वां श्लोक। हरि हरि। हरे कृष्ण। एक भजन गाएंगे। भक्तिनाथ ठाकुर का बहुत सुंदर भजन है। प्रपंचे पोड़िया अगति होइया। हो गया? नहीं मिल रहा? ISKCON डिजाइड with us. प्रपंचे पोड़िया अगति होइया, न देखी उपाय आर। हरिये प्रपंचे पुड़िया अगति होइया, न देखी उपाय। हरिये प्रपंच पोड़िया अगति होइया, न देखी उपाय आर। अगति रगति चरण शरण, तोमय करिनु सार। अगति
कर्म गयाना किछु नाही मोर साधना भजन नाई। तुमी कृपामय अमित कांगल हयतो की कृपा चाई। वाक्य मनोवेग क्रोध जिह्वा वेग उदरोपस्थ वेग। वाक्य मनोवेग क्रोध जिह्वा वेग मिलियाए सब संसारे भासये दिते चे परमोद्वेग। अनेक जतने से सब दमने छड़ियाची आस आमी। अनथेर नाथ डाकी तव नाम एको न बरसा तुम्हें। हरिये प्रपंचे पोड़िया अगति होइया ना देखी उपाय आर। प्रपंचे पोड़िया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। निताई गौरचंद्र भगवान की जय। सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। चूंकि 2 दिन पश्चात रामनवमी महोत्सव है, इसलिए आदेश प्राप्त हुआ है कि राम कथा के ऊपर कुछ चर्चा हो। 11वें स्कंद के 5वें अध्याय से एक श्लोक का हम गान करेंगे। 11-5-34। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मेष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैतेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। एक प्रभु जी एक माता जी गाइए। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मेष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैतेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। माता जी त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मेष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैतेप्सितमन्वधाव वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। तो ये श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद के 5वें अध्याय का 34वां श्लोक है।
मेरे पास अंग्रेजी में ट्रांसलेशन और परपट है, थोड़ा पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ट्रांसलेशन। O Mahapurush, I worship your lotus feet. You gave up the association of the goddess of fortune and all her opulence, which is most difficult to renounce and is hankered after by even the great demigods. Being the most faithful follower of the path of religion, you thus left for the forest in obedience to a Brahmana's curse. Out of sheer mercifulness, you chased after the fallen conditioned souls who are always in pursuit of the false enjoyment of illusion, and at the same time engaged in searching out your own desired object, Lord Shyam Sundara. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की। बहुत बड़ा purport है, थोड़ा एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। According to the Vaishnava Acharyas, this important verse of the Srimad Bhagavatam is understood to describe Chaitanya Mahaprabhu, Lord Krishna, and also Lord Sri Ramachandra. This verse appears within the discussion by the sage Karabhajana of the Yugavataras, or the different incarnations of the personality of Godhead who deliver the conditioned souls of each age. The prayers ending with the word Vande Mahapurushate Charanarvindam are understood to glorify the incarnation of Lord Krishna in Kali Yuga, known as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu lived for 24 years in Navadvipa as a householder and enjoyed immense popularity among both scholars and ordinary persons. His Sankirtana movement was completely supported by the local government, even though it was Muslim. And Chaitanya Mahaprabhu had the pleasure of marrying the goddess of fortune. No ordinary woman in this material world, no matter how gorgeous she may be, can in any way compare with the beautiful goddess of fortune. Everyone in the universe, including Lord Brahma, is searching after the goddess of fortune. Therefore, it is stated here, Surepsita. तो बहुत बड़ा परपट है इसका। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर चर्चा करके हम कथा में प्रवेश करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विता। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। त्यक्त्वा सुदुस्तुज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद अगाधरण्यम माया मृगम दयित एप्सितम अन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। तो जैसे प्रभुपाद पहले पैराग्राफ में इस पर पढ़ के बताते हैं, ये श्लोक भगवान के तीनों रूपों या तीनों अवतारों के लिए एक समान लागू होता है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, जो त्यागने के लिए अत्यंत दुस्तर है, जिसको त्यागा नहीं जा सकता है। किसी के पास बहुत बड़ा ऐश्वर्य हो तो उसे त्यागना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसे दुस्त्यज कहते हैं। सुदुस्त्यज, बहुत ही मुश्किल, जिसे त्यागना बहुत मुश्किल है। सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, ऐसा राज्य जिन्हें प्राप्त हुआ था या फिर जिनके पास साक्षात लक्ष्मी थी। अब प्रभु रामचंद्र के पास तो अयोध्या रूपी साक्षात राज्य था, भगवान श्री कृष्ण के पास संपूर्ण ब्रज का वैभव था,
और चैतन्य महाप्रभु के पास साक्षात लक्ष्मी देवी उनकी धर्मपत्नी के रूप में थी। सुरेप स्थित बड़े बड़े देवी देवता जिसको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने की कामना रखते हैं, उनको त्यागना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपने आसानी से त्यक्त्वा त्याग दिया। धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद अगाध अरण्यम, और आप अरण्य में गए, तो महाप्रभु भी अरण्य में गए, श्री कृष्ण भी अरण्य में गए और प्रभु रामचंद्र भी अरण्य में गए, है ना। आप अरण्य में गए, यद अगाध अरण्य, माया मृगम, और आपने माया मृग, माया रूपी मृग का पीछा किया। तो श्री कृष्ण तो स्वयं मृगों के पीछे दौड़ते थे और तृणचरानुगम उनको कहा गया है। तो वे भी मृगों के पीछे, पशुओं के पीछे दौड़ते थे। महाप्रभु जब झारीखंड के जंगल में गए तो अनेक मृगों को एक साथ नचाया, माया मृगम। और प्रभु रामचंद्र, ये मारीच ने जो एक माया मृग का रूप लिया था, तो उसके पीछे प्रभु रामचंद्र भी भागे। तो माया मृगम दयित एप्सितम, दयिता कहते हैं प्रिया को, उनकी प्रिया के द्वारा एप्सित इच्छित उस माया मृग को पकड़ने के लिए अनवधावत वे उसके पीछे गए। ऐसे महापुरुष के चरणारविंद में मैं नमस्कार करता हूँ। ये इस श्लोक का अन्वय है, इस श्लोक का अर्थ है। इस श्लोक के तात्पर्य को पढ़ोगे तो प्रभुपाद समझाते हैं किस प्रकार ये श्लोक तीनों के लिए लागू होता है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और प्रभु रामचंद्र, ये तीनों के लिए लागू होता है। परसों के दिन, जिसे चैत्र शुद्ध नवमी कहते हैं, प्रभु रामचंद्र के आविर्भाव का दिवस या रामनवमी भी उसे कहा जाता है, वो दिन आज से 2 दिन के पश्चात है। और रामायण या राम कथा, रामलीला के ऊपर चर्चा का आदेश प्राप्त हुआ, जिससे कि हम हमारी मति को प्रभु रामचंद्र के चरणों में स्थिर कर सके, स्थित कर सके। भगवान रामचंद्र का चरित्र जो है ये अद्भुत है, ये अद्भुत चरित्र है। अब हम कहते हैं, हम कोई अगर पूछेगा कि प्रभु रामचंद्र का चरित्र कहाँ प्राप्त होता है, तो हम कहते हैं रामायण में प्राप्त होता है। तो रामायण का अर्थ क्या है? रामस्य अयणम इति रामायणम, जहां पर प्रभु रामचंद्र का चरित्र प्राप्त होता है उसे रामायण कहते हैं। ऐसा सामान्य तौर से हम समझते हैं, परंतु वाल्मीकि जी कहते हैं कि रामाया चरित्र इति राम, रामस्य अयणम इति रामायणम। तो रामायण में जो राम शब्द है, वाल्मीकि जी कहते हैं ये रमाया चरित है। रमा कौन है? रमा है सीता देवी। तो सीता जी का जो चरित्र है वो जहां पर प्राप्त होता है उसे रामायण कहते हैं। तो वास्तविक रामायण जो है ये सीता मैया का चरित्र है, ये उन्हीं का चरित्र है। और फिर प्रभु रामचंद्र की चर्चा वहां पर क्यों होती है? क्योंकि जहां पर सीता जी का चरित्र है उसके इर्द गिर्द ही प्रभु रामचंद्र घूमते हैं, इसलिए भगवान रामचंद्र का चरित्र वहां पर प्राप्त होता है। तो वास्तविक रामायण जो है ये भगवान से अधिक भक्त के चरित्र की गाथा है। एक तो सीता महारानी, और फिर उसके पश्चात भगवान लक्ष्मण, भगवान भरत, भगवान शत्रुघ्न, हनुमान जी, ऐसे अनेक, विभीषण, सुग्रीव, अनेक चरित्रों का संग्रह जो है वो रामायण है। भक्त का चरित्र श्रवण करना यही वास्तविक भगवत कथा का उद्देश्य है। अच्छा, ये उद्देश्य कैसे पुख्त होता है, इसकी पुष्टि कहां होती है? तो आप देखोगे कि रामायण के वक्ता कौन है? तो रामायण के वक्ता कौन वक्ता है? वाल्मीकि। रामायण के वक्ता लवकुश है, वाल्मीकि तो रचयिता है। रामायण के वक्ता कौन है? लव और कुश। रामायण के वैसे तो हजारों संस्करण है, हजारों संस्करण है। हमें तो 2-4 के नाम पता है, जैसे वाल्मीकि रामायण है,
तुलसीदास कृत रामचरितमानस है, लेकिन हजारों संस्करण है। और इन हजारों संस्करणों में से केवल एक ही संस्करण ऐसा है जो प्रभु रामचंद्र यहां पर इस धरातल पर लीला कर रहे थे तभी उसकी रचना हुई। और ऐसे कई प्रसंगों की रचना वर्तमान में की गई, लेकिन वो प्रसंग भविष्य में घटे हैं। तो प्रभु रामचंद्र को रामायण फॉलो करना पड़ा। अब यही रामायण वाल्मीकि जी जब लवकुश को पढ़ाए सुनाए, लवकुश आए हैं और प्रभु रामचंद्र के दरबार में आकर रामायण की कथा सुना रहे हैं। और जब एक कथा सुना रहे हैं तो दरबार में हजारों की तादाद में अयोध्यावासी उपस्थित थे और लवकुश बड़े प्रेम से रामचरित्र सुनाने लगे, रामायण सुनाने लगे। तो सब शांति से नीचे बैठकर सुन रहे हैं। और जब सब बैठकर मंत्र मुग्ध होकर कथा सुन रहे हैं तो प्रभु रामचंद्र सिंहासन से नीचे उतरकर खुद आकर जमीन पर बैठकर कथा सुनने लगे। हाँ। अब कोई कहेगा भगवान अपनी ही कथा क्यों सुनने लगे? भगवान अपनी कथा नहीं सुन रहे हैं। इसी की पुष्टि वाल्मीकि जी अपने रामायण में करते हैं कि रामायण वास्तविक ये भगवान का चरित्र तो है, लेकिन उसके पूर्व ये उनके भक्तों का चरित्र है। ये सीता देवी का चरित्र है, ये भरत जी का चरित्र है, ये लक्ष्मण जी का चरित्र है, ये शत्रुघ्न जी का चरित्र है, ये भक्तों का चरित्र है। और चूंकि ये भक्त प्रधान चरित्र है, इसलिए स्वयं भगवान भी उसे एक श्रोता के भांति शिष्टाचार से, मर्यादा से बैठकर सुनते हैं। वक्ता उन्हीं के पुत्र है। देखिए, सब प्रकार के विरोधाभास आपको कहां प्राप्त होंगे? तो सभी प्रकार के विरोधाभास आपको केवल और केवल कथा में प्राप्त होते हैं। इसलिए कथा बहुत श्रेष्ठ होती है, बहुत आश्चर्यकारक ऐसे तत्व हम कथा में सुन पाते हैं। भगवान जो है परस्पर विरुद्ध गुणाश्रयम तम ब्रह्मत्वम, ऐसा कहा गया है। परस्पर विरुद्ध गुण जिनमें एक ही साथ आश्रय ले सकते हैं वो भगवान है। जहां की वे स्वयं भगवान है, लेकिन खुद एक भक्त के जैसा आचरण करते हैं। वो एक ही समय भगवान भी हो सकते हैं, भक्त भी हो सकते हैं। अब वो बैठकर कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते सुनते अद्भुत चरित्रों का वर्णन सुनते हैं, अद्भुत चरित्रों का। भगवान लक्ष्मण जी का चरित्र तो हम जानते ही है। जैसे ही प्रभु रामचंद्र, श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, निताई गौरचंद्र भगवान की, जैसे ही प्रभु रामचंद्र वनवास जाने के लिए निकले तो लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे हो लिए। कहे नहीं भैया, मैं आपके सिवा नहीं रह सक पाऊंगा। मैं उनके पीछे पीछे हो लिए। तो एक बार चित्रकूट में जाने के पश्चात प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण जी को पूछते हैं कि एक कुटिया बनानी है, लक्ष्मण, ये जगह ठीक रहेगी? लक्ष्मण कहते हैं भगवान मैं तो आपका दास हूं और दास को अपना मत प्रदर्शित करने का कोई अधिकार नहीं है। आप ठीक है तो ठीक, आप कहते हो ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। आप कहो वहां पर मैं कुटिया बनाने के लिए तैयार हूं। तो प्रभु रामचंद्र, हम कहते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। तो प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है क्योंकि उन्होंने धर्म की मर्यादा का पालन करके सामान्य जनों को सिखाया। इस लोक में धर्म कैसा आचरण किया जाता है, वो धर्मिष्ठ थे। इस लोक में धर्म का आचरण कैसे किया जाता है वो स्वयं आचरण करके सिखाए। तो वे सामान्य धर्म का प्रतीक प्रभु रामचंद्र है। वे सामान्य धर्म का आचरण करके दिखाए, जिसको करने के पश्चात परलोक की प्राप्ति हो सकती है। तो प्रभु रामचंद्र का धर्म यह सामान्य धर्म है। लक्ष्मण जी का धर्म यह विशेष धर्म है। प्रभु रामचंद्र मनुष्य के रूप में आए और उन्होंने मनुष्य की लीला की, परंतु लक्ष्मण जी ने जो धर्म का आचरण किया वो अद्भुत है। 14 वर्ष वनवास में रहते हुए लक्ष्मण जी निद्रा का अनुभव नहीं किए थे। 14 वर्ष वे सोए नहीं थे।
ऐसा अद्भुत सेवा लक्ष्मण जी ने प्रभु रामचंद्र की भरत महाराज, तो भरत महाराज का धर्म कहा गया है विशेषतर धर्म है, क्योंकि लक्ष्मण जी तो भगवान के साथ रहकर सेवा कर रहे थे, भरत महाराज भगवान के विरह में सेवा कर रहे थे। जब महाराज भरत आए प्रभु रामचंद्र को मनाने के लिए और उन्हें वापस बुलाने के लिए, तो सभी ने भरत जी से अनुरोध किया कि जैसे तैसे करो, आप भगवान को मनाओ और उनको साथ में ले चलो। तो भरत महाराज प्रभु रामचंद्र से विनती करते हैं, तो प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण जी की ओर देखते, सीता जी की ओर देखते, दोनों ही अनुमोदन करते, नहीं नहीं हमको वापस जाना चाहिए। और उनके साथ आए हुए सभी लोग अनुमोदन कर रहे हैं, माता अनुमोदन कर रही है कि नहीं नहीं आप वापस चलो वापस चलो वापस चलो। तो अब सभी भक्त कह रहे तो भगवान भक्तों के आगे थोड़ी हो सकते हैं। तो भगवान भी विचार करने लगे, अरे सभी कह रहे तो वापस चलना चाहिए। लेकिन फिर वे अपनी आंखें मूंद कर बैठ गए, उनका मन बड़ा खिन्न हुआ, क्योंकि वो वनवास में आए थे तो वो देख रहे थे, अरे अरे अगर मैं वापस गया तो मैं दुष्ट रावण का वध नहीं कर पाऊंगा, और इससे भी आगे चलकर हनुमान जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो ये सोचते हुए सुग्रीव से मुलाकात नहीं होगी, जामवन जी से मुलाकात नहीं होगी, हनुमान जी से मुलाकात नहीं होगी, और रावण का वध नहीं कर पाऊंगा, ये सोचते हुए भगवान का मन खिन्न हुआ। तो भरत जी समझ गए, ओहो हम हमारी इच्छा के लिए भगवान को वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन स्वयं प्रभु वापस नहीं आना चाहते, और अगर उन्हें इस बात का सुख नहीं है कि वे अयोध्या वापस चले, तो हम उन्हें अयोध्या वापस नहीं ले जाना चाहते। तब भरत जी कहते हैं प्रभु को कि प्रभु आप अगर वापस नहीं आना चाहते तो आप वनवास जाइए, हम जैसे तैसे जी लेंगे, 14 वर्ष तक हम जैसे तैसे जी लेंगे, लेकिन 14 वर्ष के बाद एक दिन भी अधिक हुआ तो आपको मेरा मृत शरीर दिखना पड़ेगा। तो वास्तविक भगवान को वनवास कैकेयी नहीं भेजी, क्योंकि अगर भरत कहते कि आप चलो तो भगवान आगे जा नहीं पाते थे। ऐसा संबंध था भरत का और प्रभु रामचंद्र का। अब भगवान भरत जी को अपनी चरण पादुका दिए, भरत जी कहे कि मैं सिंहासन पर बैठकर राज्य नहीं कर पाऊंगा, तो भगवान अपनी पादुका दिए, तो भरत जी अब उन पादुका को लेकर आए और उन पादुकाओं का अभिषेक करके उनको सिंहासनस्थ करके प्रतिनिधि स्वरूप राज्य करने की वे इच्छा की, लेकिन खुद राज्य कर नहीं पाए। तो वे अयोध्या के बाहर नंदीग्राम नामक स्थान पर निवास करते हैं, और वैसी ही कुटिया बनाकर जैसी कुटिया उन्होंने देखी थी अपने भैया और भाभी की, वैसी ही कुटिया बनाते हैं। और उन्होंने देखा कि मेरे भैया कुश पर निद्रा कर रहे जमीन पर, तो भरत जी कुश छोड़िए बबूल के कांटों की शैया बनाकर उसके ऊपर निद्रा किए, और 14 वर्ष तक इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, जबकि उनके पास संपूर्ण राज्य पड़ा था। वास्तव में भरत जी ये प्रेम का प्रतीक है। जिस प्रकार ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण को रोकी नहीं, उसी प्रकार भरत जी भगवान को रोके नहीं, उनके विरह में उन्होंने भक्ति की। बड़ा अद्भुत चरित्र है भरत जी का, और इसके विषय में काफी चर्चा भी होती है। आप जहां तहां देखोगे भरत महाराज का चरित्र आपको सुनाई देगा। लेकिन एक और इससे भी अद्भुततम चरित्र है जिसकी अधिक चर्चा नहीं होती है, जिसकी बहुत अधिक चर्चा नहीं होती है, और वो चरित्र है शत्रुघ्न जी का। तो प्रभु रामचंद्र का धर्म सामान्य है, लक्ष्मण जी का विशेष है, भरत जी का विशेषतर है, तो शत्रुघ्न जी का धर्म अति विशिष्ट है, अति विशिष्ट धर्म है। वाल्मीकि जी बड़े सूत्र पद्धति से शत्रुघ्न जी के चरित्र का वर्णन किए, और तुलसीदास जी तो शत्रुघ्न जी के चरित्र का वर्णन ही नहीं कर पाए।
तो कहा जाता है जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में श्रीमती राधा रानी का नाम उच्चारण नहीं कर पाए, उसी प्रकार तुलसीदास जी शत्रुघ्न जी के चरित्र का वर्णन नहीं कर पाए। जिस प्रकार का चरित्र शत्रुघ्न का है, वास्तव में एक सर्वोच्च भक्त का चरित्र इसी प्रकार होना चाहिए। और इसलिए एक साधक के रूप में जब हम कथा की चर्चा करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे चरित्रों को उसका सार निचोड़ 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 कर पीना चाहिए। यही साधक का कर्तव्य है, यही कथा का प्रयोजन है। वैसे तो सामान्यतः लीला कथाएं तो हम सुनते ही रहते हैं, किस प्रकार कई के वरदान की वजह से प्रभु रामचंद्र को वनवास जाना पड़ा। फिर हम कई को दोष देते हैं, कई देखो कितनी निष्ठुर थी। एक बार ऐसा प्रसंग हुआ कि भरत जी का गुणगान लक्ष्मण जी कर रहे थे, तो लक्ष्मण कहते कहते भगवान को कहे कि देखिए सामान्यतः पुत्र में माता के गुण होते हैं, लेकिन भरत जी में अपने पिता के गुण अधिक है। तो वे कैकेयी जी का किसी भी प्रकार से निंदा करने की उसमें कोई भी ये, लेकिन प्रभु रामचंद्र इसे कैकेयी की निंदा रूप में देखे और लक्ष्मण जी को फटकारे, कहे कि नहीं, कैकेयी माता मेरे लिए अति पूज्य है। तो माता कैकेयी का चरित्र एक और अलग बात है, ये अद्भुत चरित्र है। कैकेयी की निंदा करने वाला व्यक्ति प्रभु रामचंद्र को कभी भी प्रिय नहीं होता है। तो इन भक्तों का चरित्र श्रवण करना, स्मरण करना, मनन करना, यही इन कथाओं का उद्दिष्ट है। और इसीलिए समझिए जिस कथा को हम सुन रहे हैं उसी कथा को प्रभु रामचंद्र राज्याभिषेक होने के पश्चात जमीन पर बैठकर सुन रहे हैं। अद्भुत चरित्र है। तो शत्रुघ्न जी का जो चरित्र है उसे अति विशिष्ट धर्म कहा जाता है। वाल्मीकि जी बहुत ही सूत्र पद्धति से इसका वर्णन किया, लेकिन इसका विस्तार गोविंदराज जी अपने तात्पर्य में करते हैं, अपने टीकाओं में करते हैं। गोविंदराज जी ये एक श्री संप्रदाय के बड़े आचार्य हैं जिन्होंने रामायण, वाल्मीकि रामायण के ऊपर बड़ी बृहद टीका लिखी है। तो वे शत्रुघ्न जी के चरित्र का अद्भुत वर्णन करते हैं। अब लक्ष्मण तो प्रभु रामचंद्र के साथ हो लिए, हाँ वनवास में है, लेकिन कम से कम भगवान के साथ तो है, भगवान के पर्सनल सेवा में है, उनकी वैयक्तिक सेवा कर रहे हैं। उनको क्या चाहिए नहीं चाहिए उसके हिसाब से कभी कंदमूल चुनकर लाते हैं वन से, तो कभी जल की व्यवस्था करते, कभी रहने की व्यवस्था करते, कभी कोई असुर आए तो उसकी व्यवस्था करते, ये सब कर रहे हैं। और रात को कोई आए ना और हमारे प्रभु की नींद को खराब ना करे, इसलिए रात भर जाग कर पहरेदारी करते हैं। 14 साल लक्ष्मण जी सोए नहीं, चाहे कितने भी ये कष्ट प्रतीत हो, लेकिन फिर भी भगवान के साथ है। भरत जी को प्रभु रामचंद्र ने ये आदेश दिया कि आप जाकर अयोध्या का राज्य संभालिए, तो भरत जी भी नंदीग्राम में बैठकर विरक्त रूप में विरह भजन में, विप्रलंब भजन में लग गए। दिन रात केवल और केवल प्रभु का भजन करते थे और कुछ नहीं, और वो भी विरह में। जिस प्रकार गोपियां कृष्ण बलराम जाने के पश्चात कभी उस राह से हिली नहीं जिस राह से कृष्ण गए हैं, इसी आस में कि कृष्ण वापस आएंगे, उसी प्रकार भरत महाराज, क्योंकि प्रभु रामचंद्र अयोध्या से निकलते वक्त नंदीग्राम से होकर निकले थे, तो उसी राह में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। और कैसे रहते थे आपने कभी देखा है? बबूल का कांटा इतना तीक्ष्ण होता है, कभी अगर गलती से भी लग जाए तो बड़ा दर्द होता है। उन कांटों की शैया पर भरत महाराज सोते थे। अच्छा, शत्रुघ्न जी चाहते थे कि वे भरत महाराज की सेवा करने के लिए वही नंदीग्राम में रुके, क्योंकि राम
लक्ष्मण तो है नहीं। तो शत्रुघ्न चाहते थे कि भरत के प्रति शत्रुघ्न का बहुत अधिक स्नेह था, तो वे चाहते थे कि वे भरत की सेवा करे वहीं पर बैठकर। तो भरत महाराज कहे कि देखो शत्रुघ्न, राज्य की जिम्मेदारी राजा की होती है, और अगर राज्य में कुछ भी उतल पुतल होता है तो उसका कर्म राजा के ऊपर आता है। अब इस राज्य के राजा प्रभु रामचंद्र ये तो वन में है, लक्ष्मण जी उनके साथ है, और ये जिम्मेदारी मुझ पर है, लेकिन मैं ये कर नहीं पा रहा हूं। और अगर कोई भी इस राज्य को नहीं संभालेगा तो ये पूरा कर्म हम तीनों के ऊपर आएगा। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारी रक्षा करने हेतु तुम राज्य को संभालो। और शत्रुघ्न जी चुपचाप जाकर राज्य संभाले, चुपचाप जाकर राज्य संभाले। अब राज्य कर रहे थे तो क्या देख रहे थे? वो गौशाला में, क्योंकि किसी भी राज्य का जो मूलाधार होता है वो वहां का गौधन होता है। ये वैदिक संस्कृति है। तो गौशाला में जाकर देखते हैं तो गाय कुछ चारा नहीं खा रही है। क्यों नहीं खाती है? तो गैयों से पूछा गया कि आप क्यों नहीं खा रही है? तो बोले क्या करे, खा के खाएंगे तो दूध बनेगा, दूध बनेगा तो थनों से निकलेगा, और अगर थनों से दूध निकलेगा तो उसे पीने के लिए प्रभु रामचंद्र तो अयोध्या में है नहीं, तो दूध किसके लिए हम उत्पन्न करें? तो इसलिए खाने से क्या होगा, इसलिए हम चारा नहीं खा रहे। तो शत्रुघ्न जी कहते हैं ठीक है, आप चारा मत खाओ, ऐसे ही इस प्रकार से रूखी सूखी बनी रहो, और जब प्रभु रामचंद्र 14 वर्ष के बाद आएंगे वो देखेंगे कि मेरी अयोध्या की गैया जो है इतनी शुष्क हुई है, तो उन्हें बड़ा आनंद होगा, है ना। तो गैयों की आंखों से आंसू निकल आते हैं ये सुनकर। तो शत्रुघ्न जी कहते हैं कि इस अवस्था में तो आपको इतना रुष्ट और पुष्ट रहना चाहिए, इतना चारा खाना चाहिए कि आपके थनों से दूध निकल निकल कर दूध की नदियां बने, वो नदियां सरयू में जाकर मिले, सरयू को दुग्ध युक्त बना दे, सरयू जाकर गंगा जी में मिले, गंगा जी दुग्ध युक्त हो जाए, और अंत में समुद्र जाकर दुग्ध युक्त हो जाए। ये तो सेवा है। और जब प्रभु रामचंद्र वापस आएंगे और आपको इस अवस्था में देखेंगे तो वो देखते ही आपका उनका मन जो है बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। तब जाकर अयोध्या का गोधन जो है ये पूरी तरह से रुष्ट होने लगा, पुष्ट होने लगा। अब अपने दरबार में आते हैं तो देखते हैं माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी अपने अपने कक्षों में पड़ी है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो कोई दासी, एक आध दासी आकर कहती है कि भैया देखिए माता कौशल्या ने 1 सप्ताह से कुछ भी नहीं खाया है। तो शत्रुघ्न जी जाते हैं माता कौशल्या के पास और कहते हैं माता माता मुझे भूख लगी है, लेकिन खाने को कोई कुछ दे ही नहीं रहा है। तो माता कहती है अच्छा शत्रुघ्न तुम्हें भूख लगी है, आओ आओ मैं तुम्हें खिलाती हूं। तो कौशल्या प्रसाद की थाली मंगाकर शत्रुघ्न जी को खिलाने लगती है। तो कहती है नहीं नहीं पहले आप खाएंगे तो मैं खाऊंगा। तो माता कहती है शत्रुघ्न मैं कैसे खाऊं, जब से रामचंद्र गए हैं मुझे तो कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। तो कहते हैं हाँ हाँ केवल राम ही तो आपके पुत्र है ना, शत्रुघ्न के प्रति आपका तो कोई कर्तव्य है नहीं। तो ये सुनते ही माता कौशल्या नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। तो फिर शत्रुघ्न जी को बिठाती है, खुद भी खाती है, उनको भी खिलाती है। इस प्रकार से शत्रुघ्न जी हर एक की रक्षा करते हैं प्रभु रामचंद्र के विरह में। नीचे आकर देखते हैं तो सुमित्रा जी अपने कक्ष में इस प्रकार पड़ी है जैसे कोई जीवंत शव हो, न श्रृंगार किए है, न कपड़े बदले हैं, न कुछ किए, ऐसी ही उनकी त्वचा भी रूखी सूखी हुई है। तो जाकर माता से कहते हैं माता ये क्या हालत बना रखी है आपने? तो माता कहती है कि मुझे कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही। उनसे कहते हैं हाँ हाँ केवल प्रभु रामचंद्र ही आपके पुत्र हैं, शत्रुघ्न जी के प्रति तो किसी को कोई पड़ी नहीं है। मेरे सामने आप इस रूप में आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा।
तो इस प्रकार सुमित्रा को भी रिझाते हैं, कई को भी रिझाते हैं। जब अयोध्या की डगर पर निकलते हैं तो अयोध्या के डगर पर जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी है वो वैसे ही बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो कहते आप साफ सफाई क्यों नहीं करे? तो कह रहे किसके लिए करें, किसके लिए करें? इस डगर से थोड़ी प्रभु रामचंद्र जाने वाले, वो तो गए वन में, अभी अयोध्या ही वन बन जाए यही अच्छा है। तो कहते हाँ हाँ कुछ मत करो, इसी प्रकार अपने नगरी को गंदा बनाए रखो। जब प्रभु आएंगे और देखेंगे कि मेरी अनुपस्थिति में जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी उन्होंने मेरी नगरी का क्या हाल बना के रखा है, तो उन्हें अच्छा लगेगा, आप ऐसे ही रखो इसे। तो वे उत्साह से उठकर नगरी का सम्मान करने लगते हैं। अनेक प्रकार के गायक और वादक उस अयोध्या में निरंतर गायन वादन और नर्तन चलता था, निरंतर। आप कहीं भी जाओ आपको कुछ ना कुछ सुंदर गायन की और वाद्य का आवाज सुनाई देगा, ये निरंतर चलता था। लेकिन आज शत्रुघ्न जी देखे तो सब बंद। क्यों, क्या हो गया भाई? बोले किसके लिए गाए, सुनने के लिए तो कोई है ही नहीं, न राम है, न लक्ष्मण है, न भरत है, किसके लिए गाए? महाराज दशरथ थे, वे भी चले गए, किसके लिए गाए? तो कहते हाँ हाँ अपनी नगरी को इसी प्रकार अशुभ बनाए रखना, कोई मंगल वाक्य नहीं, कोई मंगल गान नहीं। प्रभु रामचंद्र जब आएंगे और देखेंगे कि मेरी नगरी तो एक शमशान के समान हो गई है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उल्टा आपने इतना रियाज करना चाहिए कि जैसे ही प्रभु रामचंद्र आएंगे 14 वर्ष के पश्चात, तो वे आपके गान को सुनकर उनके 14 वर्ष के वनवास का कष्ट जो है एक क्षण में निरस्त हो जाए, तो वे बड़े उत्साह से गाने लगे, बड़े उत्साह से गाने लगे। ये सब करते हुए, स्वयं राजकुमार होते हुए जब वे अपने कक्ष में जाते तो उस राजवेश को त्याग करके वनवासी वेश को धारण करके एक कुश का आसन बिछाकर उसके ऊपर शयन करते, वनवासी की तरह। ऐसे करते करते 13 वर्ष बीत गए। एक दिन माता कौशल्या को छत पर कुछ आवाज सुनाई दी जिसमें कोई स्त्री बिलक बिलक कर रो रही है उनके ही कक्ष के ऊपर। तो वे ऊपर जाकर देखी तो वहां पर शत्रुघ्न जी की पत्नी श्रुतकीर्ति थी। तो कह रही बेटा आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? और शत्रुघ्न कहा है, तो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि माता मैंने शत्रुघ्न जी को 13 वर्ष से दर्शन नहीं किया है, उनका दर्शन ही नहीं हुआ है। तो अचंभित हो गई, ये क्या हो गया? जो पूरे नगरी में उछलता है, कूदता है, सबको उत्साह देता है, अयोध्या के घर घर में उत्सव मनाना बंद हो गया था, तो शत्रुघ्न जी खुद उत्सव की व्यवस्था करते और हर एक घर में बड़े बड़े उत्सव मनाते थे। इस संपूर्ण अयोध्या का जो उत्साह था वो बनाए रखने का काम शत्रुघ्न जी कर रहे थे। ऐसा सुनाई देता है कि 14 वर्ष अयोध्या में किसी भी नए बालक का जन्म नहीं हुआ, परंतु यह बात भी उतनी ही सत्य है कि 14 वर्ष तक दशरथ जी के सिवाय अयोध्या में किसी की मृत्यु नहीं हुई, और उसका कारण थे शत्रुघ्न जी। तो ये संपूर्ण अयोध्या जो थी एक शमशान बनकर रह जाती। इसको बनाए कौन रखे? शत्रुघ्न बनाए रखे। तो माता कौशल्या इसी समझावट में थी कि शत्रुघ्न तो बहुत खुश है, लेकिन जब श्रुतकीर्ति की बात सुनती है तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगता है। श्रुतकीर्ति ने 13 वर्ष से शत्रुघ्न का चेहरा नहीं देखा था। देखिए माता सीता तो वनवास में थी, लेकिन कम से कम अपने पति के साथ थी।
अच्छा, उन्हें उनका अपहरण हुआ, ये हुआ, वो बात अलग है। यहां पर उनके पति साथ में रहते हुए भी श्रुतकीर्ति ने 13 वर्ष तक उनका दर्शन नहीं किया। अब शत्रुघ्न कहाँ है, इसका अन्वेषण करने के लिए जब माता कौशल्या रात को निकली श्रुतकीर्ति को लेकर, तो नंदीग्राम जाकर पहुंची तो देखा कि एक शिला के पीछे बैठकर शत्रुघ्न वनवासी वेश में भरत जी के कुटिया की तरफ ताकते हुए फूट फूट कर रो रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार भरत जी अपने आप को रखे थे ना, उनका दर्शन करके तो कोई भी अपने आप को संभाल नहीं पाता था। वो भरत जी में कभी प्रभु रामचंद्र का दर्शन करते थे, तो कभी लक्ष्मण जी का दर्शन करते थे, कभी भरत जी का दर्शन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए। देखिए, सेव्य जिनकी सेवा करने की इतनी प्रगाढ़ अभिलाषा है, वो सामने है लेकिन उनके पास जा नहीं पा रहे। शत्रुघ्न जी हट किए थे भरत जी के सामने, नहीं मैं आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूंगा। तो भरत जी कहते कि अगर आप ये करोगे तो मैं अपना प्राण त्याग कर दूंगा। इतना अद्भुत दायित्व, अपनी भावनाओं तक को व्यक्त नहीं कर पाते थे शत्रुघ्न, उसका भी उनके पास कोई मुभा नहीं थी। अब यहां बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे, और इस रूप को माता कौशल्या ने शत्रुघ्न के 13 वर्ष पश्चात देखा। 13 वर्ष पश्चात देखा। वास्तविक अयोध्या को जीवित रखने का काम शत्रुघ्न जी ने किया। अच्छा, यहां तक ही ये सीमित नहीं होता है। अब प्रभु रामचंद्र रावण का वध करके सीता को लेकर आ रहे हैं पुष्पक विमान में बैठकर। अब वानर भी आए, भगवान भी आए, सीता मैया भी आई, हनुमान जी भी आए, सब आए। ऊपर से प्रभु रामचंद्र देख रहे, ये क्या है, ये अयोध्या है। अयोध्या इतनी सुंदर सजी हुई थी। वो कहते मुझे तो लगा था मेरे वियोग में ये पूरी शमशान बन गई होगी, लेकिन ये अयोध्या है। प्रभु देखकर बहुत खुश होते हैं। जैसे ही आते हैं अपने गौशाला में जाते हैं, और गौशाला में जाते जाते ही उनको देखते ही गैयों के थनों से दूधों की धार बहने लगती है, जैसे वहीं पर उनका अभिषेक कर दिया हो गैयों ने। अब ये करते हुए जैसे ही प्रभु रामचंद्र वापस आए, तो उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो गई। अब राज्याभिषेक होना है, तब तक मंत्रीगण आए, और मंत्रीगण कहने लगे कि भगवान, मथुरा में एक बहुत ही विलक्षण असुर ने कब्जा कर लिया है, और ये रावण से भी भयंकर है। अगर उसको अभी वहां नहीं रोका गया तो वो अयोध्या पर आक्रमण करेगा। एक और युद्ध की तैयारी करो। और प्रभु रामचंद्र कहते मैं तो अभी अभी आया हूं, और अभी राज्याभिषेक की तैयारी होनी है। इतने बड़े बड़े संत महंत ऋषि महर्षि आए हैं, अब मैं युद्ध पर कैसे जाऊं। तो वे लक्ष्मण जी की ओर देखते। लक्ष्मण जी कहते भैया मेरी तरफ तो देखो ही नहीं। हाँ, मैं तो आपका साथ छोड़ने वाला हूं नहीं। आप जाओगे तो मैं आपके पीछे जाऊंगा, आप नहीं जाओगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भरत जी की ओर देखते तो भरत जी ऐसे बने हैं, वो तो एक विमुक्त संत के समान। उनको क्या कहेंगे कि वो पूरे रुष्क शुष्क हो गए, उनको क्या कहेंगे कि आप जाकर युद्ध करो। फिर प्रभु रामचंद्र देखते तो उन्हें दिखाई देते शत्रुघ्न। अब शत्रुघ्न को समझ में आता है कि उनकी सेवा क्या है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी वर्णन किए हैं, शत्रुघ्न प्रभु रामचंद्र के तरफ आंख उठाकर कभी देखते नहीं थे। वैसे तो चारों ही भगवान ही है ना, वो भगवान के ही तो रूप है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन्हीं की तो रूप। तो वे भगवान की तरफ कभी मुख उठाकर देखते नहीं थे, क्योंकि उनके चेहरे का अगर दर्शन कर लिया और उनके प्रति मन आसक्त हुआ
तो जब ये वनवास जाएंगे तो मेरा जीवन बहुत कठिन होगा, इसलिए वो कभी प्रभु रामचंद्र का दर्शन नहीं किए। अब जबकि सब खत्म होने के बाद प्रभु रामचंद्र का वास्तविक संग मिलने का, उनके साथ रहने का आनंद शत्रुघ्न जी को प्राप्त हो रहा है, तभी प्रभु कहे कि जाइए मथुरा और जाकर इस लवणासुर का बंदोबस्त कीजिए। अब शत्रुघ्न कुछ न कहते हुए चुपचाप मथुरा आए। उनकी पत्नी श्रुतकीर्ति उनके साथ थी। आकर शत्रुघ्न जी का वध, लवणासुर का वध किया। आज भी आप जाकर देखोगे मधुवन में लवणासुर गुफा है, वहीं पर लवणासुर का वध किया शत्रुघ्न ने। लवणासुर भयंकर असुर था, ये रावण से भी बहुत शक्तिशाली था। सिंगल हैंडेडली शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया। और प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि आपने लवणासुर का वध किया है, मथुरा के राज्य को संभालिए, वहीं पर रहिए। ऐसा नहीं कि लवणासुर का वध किया तो वापस आइए, वहीं पर रहिए। कुछ ना कहते हुए चुपचाप रहकर शत्रुघ्न जी मथुरा के राज्य को संभाल रहे हैं। अरे उस राज्य में क्या आनंद जिसमें राम ही नहीं है। अब श्रुतकीर्ति को शत्रुघ्न का ये जो अवस्था है ये देखे नहीं बनती थी। रात भर रोते थे शत्रुघ्न जी प्रभु रामचंद्र के विरह में। तब श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न के आनंद के लिए रामलीला का आयोजन करती है। ये रामलीला तब से चल रही है और आज भी मथुरा की रामलीला जो है बड़ी प्रसिद्ध है। मथुरा में रामनवमी के समय बड़ी प्रसिद्ध रामलीला का आयोजन होता है। तो श्रुतकीर्ति इसका प्रारंभ की, इस रामलीला का। अब शत्रुघ्न जी बैठकर रामलीला का दर्शन करते हैं तो हा राम, हा लक्ष्मण, हा भरत कहते हुए रोते हैं। और जो व्यक्ति वो पात्र को निभा रहा है जाकर उनके चरणों को पकड़ रहे हैं, उनको आलिंगन दे रहे हैं, उनके वस्त्रों को सूंघ रहे हैं और फूट फूट कर रो रहे हैं। यहां से शत्रुघ्न जी पत्र लिखते थे हालत बताने के लिए यहाँ के, तो कभी किसी बात की कंप्लेंट नहीं किए कि प्रभु आपने हमें आपसे आपके वियोग में रखा है। और वहां से उत्तर आता था, हाँ हाँ शत्रुघ्न हमें पता है आपने लवणासुर को मारा है, आप बहुत बढ़िया सा राज्य कर रहे हो, बने रहो। अगर भविष्य में समय आएगा तो मुलाकात होगी, नहीं तो अगला अवतार तो वही भी होना है। श्रुतकीर्ति को ये देखा नहीं। अब वो उपाय करने गई तो वो उपाय भी उल्टा पड़ गया, उनका विरह और बढ़ गया। तब श्रुतकीर्ति प्रभु रामचंद्र को पत्र लिखती है शत्रुघ्न की अवस्था को बताते हुए। तब प्रभु रामचंद्र स्वयं आकर शत्रुघ्न से मिलते हैं। देखिए सेवा क्या है, ये सेवा का इसलिए उनका धर्म अति विशिष्ट कहा गया है। भगवान को आना पड़ा शत्रुघ्न से मिलने के लिए, यह अति विशिष्ट धर्म है। सेवा का अर्थ भी भगवान के साथ रहना, संयोग में रहना। ये भी तो हमारी, ठीक है, इच्छा आध्यात्मिक है, लेकिन भक्त की इच्छा की पूर्ति ही है ना। ये सेवा की पराकाष्ठा है जब भक्त अपने किसी भी आध्यात्मिक चाहे भौतिक इच्छा की पूर्ति की कामना आकांक्षा न करते हुए केवल और केवल भगवान की सेवा का, भगवान के आनंद का बंदोबस्त करता है, जिससे भगवान को संतुष्टि प्राप्त हो। आप अगर चैतन्य चरितामृत आदि लीला चतुर्थ अध्याय ठीक से पढ़ोगे तो उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस भाव का बड़ा सुंदर प्रकार से वर्णन करते हैं। भक्त को भगवान को संतुष्ट करते करते कभी कभी उसमें कुछ भावनिक विकार आ जाते हैं, उसमें अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें कंपन स्वेद इत्यादि उत्पन्न होते हैं, उसकी वाणी गदगद होती है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं।
लेकिन इन विकारों को भी वो सेवा में बाधा मानते हुए इससे भी तिरस्कार कर लेता है। ये भक्त का स्वभाव है। जैसे दारुक भगवान के सारथी है, तो भगवान का दर्शन करते 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 एक बार उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब जब आंखों में आंसू आए तो दर्शन जो है वो ओझल हो गया। अब जब किसी भी भक्त को थोड़ा भी भक्ति का आनंद प्राप्त होता है, तो जैसे आंखों में आंसू आए या फिर अंग कपकपाने लगा, तो उससे और अधिक आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन एक शुद्ध भक्त जो होता है वो इस आनंद का भी तिरस्कार करता है। श्रीमद् भागवत कहता है मुक्ति के आनंद का तिरस्कार तो करता ही है वो। मत सेवनम प्रतीतम ते सालुक्यादि चतुष्टयम दीयमानम न गृह्णन्ति मत बिना मत सेवनम परे। मेरी सेवा करने से सालोक्यादि चतुष्टय मुक्ति उसे अनायास प्राप्त हो जाती है, लेकिन अगर वो मेरी सेवा से विरहित है तो वो मुक्ति को भी नहीं चाहता है। चैतन्य चरितामृत कहता है मुक्ति की इच्छा को और कामना को छोड़िए, वो भक्ति से प्राप्त होने वाला आनंद भी भोगना नहीं चाहता है अगर उससे भगवान की सेवा में बाधा हो रही है। और इस अभूतपूर्व सेवा का प्रतीक जो है वो महाराज शत्रुघ्न है। इनके चरित्र को इतनी चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन वास्तविक उनका धर्म गोविंदराज जी बताते हैं अति विशिष्ट धर्म है। और एक भक्त को चाहिए, एक साधक को चाहिए कि इस भाव को प्राप्त करते हुए जब भगवान का भजन हो तो भगवान साक्षात दर्शन देने उस भक्त के सामने आएंगे, साक्षात आएंगे। और यही कथाओं का सार है कि कैसे हम इन कथाओं को श्रवण करते करते ऐसे अभूतपूर्व चरित्र को आत्मसात करने का प्रयास करें। और इसके लिए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ है। नहीं तो ऐसी लीला, ऐसी कथा हमें कहां से श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।